Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we're going to talk about an overview paragraph. After your introduction, we studied the formula clear. 5 points must be included in your introduction paragraph. The first one was about name of the graph, then verb, change verb, clear, and then I told you mention clear the topic of the graph, and then where the place where it took place, and the fifth one that was about when. Now, in today's lecture, we're going to talk about an overview, how to write an overview paragraph. I would say that this is the most important paragraph clear in your IELTS writing task one, and this is the second paragraph. Most of the time, teachers they suggest students to write down an overview paragraph, overview and introduction both in one clear. But I don't suggest you to write down in is one paragraph. I suggest you to write in overview as a separate paragraph. Do not include it in your introduction part. So the overview is the most important paragraph in your IELTS writing task one response. It is clear summary of the most noticeable features, main trends, differences, or stages presented in visual data. Okay, let me clear you. This is what you need to think about any of the graphs. Uh, if I show you a graph practically clear, and then I want you to give me some of the information about the graph. Let's take practical example for this one. After your introduction, Claire, look at this graph. So if you remember yesterday, I told you key features. So among key features, first of all, can you name how many categories do we have? Be with me. There are Three, three sir. Three categories. categories. Very good. These three are the categories, right? Very good. The second question I can ask, or you can ask, first of all, for overview paragraph, you must know about how many categories are there. So there are three categories, first of all. Point number two, ask yourself, what is the general trend for each category? General trend. Now, what I mean by general trend for each category? General trend means that either any of the category, like we have pizza, clear? So what is the general trend for pizza? It's an increasing trend, right? Yes, sir. And if I ask you Yes. about the fish and chips, so that is decreasing trend. And what about hamburgers? Again, that's an increasing trend. So there are three categories, first Decreasing. of all. Excellent. And if I ask about the general trend, so for the general trend, Claire, we may talk that uh, two of the categories, two of them, they show upward, these two, and the one, it shows the opposite one. Am I right? And then what you can do, you can even like ask yourself for the next point. And what is that point? You can ask yourself, uh, is there clear what is the highest clear category? For example, there are three categories, and if you name any of the categories, that it shows the highest changes. So what do you think, like which category showed the highest changes? Hamburger. That's a Chips. hamburger, right? So hamburger shows the highest one. Excellent. And what about the lowest? So Fish over the and period, that's Fish fish and and chips. Am I right? fish and chips. Very good. So you can ask these questions. Number Yes, one, sir. Yes, sir. you must know about how many categories are there, and then what is its gender trend. Okay. Uh, एनवरी पैराग्राफ हम ये नहीं कहना चाहते, हम ये नहीं करते कि आप मुझे ये बता दें कि कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ। ये चीजें हम नहीं मेंशन करते। हम क्या मेंशन करने वाले? वी जस्ट सिंपली वांट टू आंसर दिस क्वेश्चंस कि अच्छा इसमें मतलब कितने कैटेगरीज है, और कौन से कैटेगरी का क्या हमारे पास इन कैटेगरीज का जो जनरल ट्रेंड है वो क्या है, मतलब इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, राइट? और इसके बाद आपने ये फाइंड आउट करना है कि इसमें सबसे हाईएस्ट चेंजेस वाला कैटेगरी कौन सा है और सबसे लोवेस्ट कैटेगरी कौन सा है। ये सिर्फ आपने मतलब ढूंढना है, ठीक है? अब मैं समझाऊंगा आपको कि ओवरव्यू पैराग्राफ लिखना कैसे है।
तो सबसे पहले मैंने यहां पे कहा कि ओवरव्यू इज योर बिग पिक्चर। अब अनलाइक द इंट्रोडक्शन अनलाइक द इंट्रोडक्शन विच सिंपली टेल्स द एग्जामिनर व्हाट द ग्राफ इज अबाउट। हाँ, वो तो हमारे पास ग्राफ था ना, कि किस चीज के बारे में, कहाँ के बारे में, एंड देन कौन सी ईयर में हुआ था। द ओवरव्यू टेल्स द एग्जामिनर व्हाट द ग्राफ शोज। क्लियर? शोज जनरली विदाउट लुकिंग एट स्पेसिफिक नंबर्स। मैं आप लोग को मतलब समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझे, ठीक है? अब जब ओवरव्यू पैराग्राफ है तो हम इसमें जनरल ट्रेंड के बारे में कहते हैं, क्योंकि व्हाट इज हैपनिंग इन इट, व्हाट्स द बिग पिक्चर इन द ग्राफ, हाउ। लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दैट। अभी जो ग्राफ्स आप लोगों ने देखे, तो हम ये नहीं कहते कि इसकी जो वैल्यूज है, वैल्यूज क्या है या कब हुआ है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ओके, इफ आई लुक एट द ग्राफ, आई कैन सी दैट हैमबर्गर्स experienced clear experience a dramatic सर growth आवाज over येते the माझी period. सर. Can you hear me? खाली सर हो. Am I visible now? Can you hear me? यस Can सर. you, Yes, sir. Your voice is distracted. बीच में से. let me नेटवर्क change नेट let me change the internet connection. अब क्लियर है? Am I clear now? Yes, sir. यस Yes, Yes, सर. sir. Okay. अच्छा, अब हम ये पढ़ना चाहते हैं, वी वांट टू नो अबाउट। मैं क्लियर करता रहूंगा साथ साथ, ठीक है? आप लोग मतलब एक स्टेप वाइज हमें आई विल ट्राई टू क्लियर द ओवरव्यू पैराग्राफ। इट्स इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो ये स्ट्रक्चर Okay. हमारे पास होगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन के बाद जो दूसरा पैराग्राफ होगा वो क्या होगा? ओवरव्यू। तो ओवरव्यू में मैंने यहाँ पे मतलब क्लियरली मेंशन किया है कि जस्ट समराइज द मेन ट्रेंड्स, हाईएस्ट और लोवेस्ट, क्लियर, ओवरऑल चेंजेस, नो डेटा। हम ओवरव्यू पैराग्राफ में दो चीजें इस यहाँ पे मेंशन नहीं क्या करते। हम ये नहीं कहते कि नंबर्स और परसेंटेजेस और डेट्स। ना हम ओवरव्यू पैराग्राफ में डेट्स को मेंशन करना चाहते, ना ओवरव्यू पैराग्राफ में कोई परसेंटेज या डेट वगैरह। मैं फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव एन इजी एग्जांपल, क्लियर? मैं आपको एक इजी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पे अरसलान है, अरसलान खलील। Arsalan, for example, he achieved Band 8 in IELTS actual exam. ठीक है? अरसलान ने 8 बैंड अचीव कर दिया एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। और अरसलान ने जितने भी ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन्हें दावत दी कि आप लोगों ने आना है लंच पर। तो अरसलान ही कुक डिफरेंट डिशेस एट होम। He cooked, for example, kabli pulao. He cooked biryani, clear, or for example, chicken kadai or mutton kadai, suppose. And he also cooked like some vegetables as well. Suppose he also cooked turnip. अच्छा, अब आप लोगों ने ये नहीं देखना कि आप टेबल पर तो काफी ज्यादा चीजें हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोटी, वहां पे रोटी विल बी अवेलेबल। एम आई क्लियर? कि ये क्यों चेंज हो रहा है इंटरनेट कनेक्शन? Can you hear me? Am I audible? Sir, अच्छा, Yes, yeah, तो yes. अब सर अरसलान आवाज अरसल कटकी गिरे जा. अच्छा, आई डोंट Sir, नो your क्या। voice like sometime lagging. अच्छा, तो अरसलान ने क्या किया? अरसलान ने हमें दावत दी एंड ही कुक डिफरेंट डिशेस फॉर अस। जैसे मतलब इसने काबली पुलाव, राइस पकाया, एंड देन मटन कढ़ाई और चिकन कढ़ाई, एंड देन ही आल्सो कुक्ड सम टर्निप। अब एग्जांपल को समझे, ठीक है? अब अगर हम ये देखें कि अरसलान ने जितनी चीजें पकाए, सो टेबल पर काफी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा चीजें हो सकती है। दैट यू कैन फाइंड वाटर, यू कैन फाइंड कोल्ड ड्रिंक्स, यू कैन फाइंड सैलेड, यू कैन फाइंड रोटी, डिफरेंट थिंग्स। लेकिन हमने यहाँ पे हर एक चीज को मेंशन नहीं करना होता। हमने जनरली जो मेन आइडियाज है, जो मेन पॉइंट्स है, मेन ट्रेंड्स और फीचर्स है, उन्हें सर पिक करने हैं। मतलब टेबल पर जो मेन डिशेज है उसमें है काबली पुलाव, चिकन कढ़ाई एंड टर्निप, ठीक है? अब जैसे हमने खाना खाया, हम बाहर आए तो अरसलान के भाई आते हैं, उनसे पूछते हैं कि अच्छा भाई क्या हाल है। तो अरसलान उन्हें कहते हैं कि मेहमानों ने सबसे ज्यादा चावल को पसंद किया। उसने क्या कहा? जनरली कह रहा है। अब अरसलान ये नहीं कह रहा कि मेहमानों ने चावल को कितना पसंद किया और कितने चावल खाए और कब खाए।
कितना, क्लियर, और कब, ये चीजें नहीं कहता वो। सिंपली ही जस्ट वांट्स टू से दैट गेस्ट प्रेफर ईटिंग राइस द मोस्ट। तो सबसे ज्यादा किस चीज को पसंद किया, राइस। और अगर हम कहें, Rice. और सबसे कम, और सबसे कम मेहमानों ने फॉर एग्जाम्पल शलगम खाया। तो अब मुझे ये बताइए कि हाईएस्ट पॉइंट को आपने मेंशन किया, लोवेस्ट पॉइंट का आप लोगों ने मेंशन कर दिया। अब इसमें अरसलान ने ये नहीं कहा कि कितने किलो राइस और कितना और कब, ये नहीं कहता। ही सिंपली सेज दैट द गेस्ट क्लियर प्रेफर ईटिंग द राइस द मोस्ट। सबसे ज्यादा किस चीज को पसंद किया गया, राइस को। Rice. वाइल, वाइल, ठीक है, तो एक पॉजिटिव होगा, मतलब एक इंक्रीजिंग ट्रेंड वाला होगा। और दूसरा जो है द सेकेंड वन, क्लियर, इन्हें हम जी. कनेक्ट करेंगे कामा। कामा के साथ हमने लगाना है वाइल, और यह हमने लगाना है वेयर एज, वेयर एज। और इसके बाद आपने डिक्रीजिंग वाला लिखना है बस। तो एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग को आप मेंशन करें तो दैट्स योर ओवरव्यू। लेकिन इसमें ना आपने डेट्स को मेंशन करना है, और ना नंबर्स को, ना वैल्यूज को, ना परसेंटेजेस, किसी चीज को आप लोगों ने यहां पे मेंशन नहीं करना होता। लेट मी गिव यू सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, यू नीड अंडरस्टैंड। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो ओवरव्यू पैराग्राफ है दैट हैज टू बी आफ्टर योर इंट्रोडक्शन, आखिरी नहीं। अब इस वाले इंट्रोडक्शन को यहां पे देखिए आप लोग। दिस इज समथिंग लाइक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। सबसे पहले अगर ओवरव्यू पैराग्राफ आप लोगों ने लिखना है तो आपके अल्फाज होने चाहिए ओवरऑल। यू विल स्टार्ट योर ओवरव्यू पैराग्राफ विथ क्लियर इंट्रोडक्टिव फ्रेज एंड दैट इज कॉल्ड ओवरऑल। ओवरऑल के बाद आप कामा लगाए, उसके बाद लिखिए इट इज क्लियर दैट, बस ये खत्म हुआ। अब हमारे पास हमने क्या कहा, दैट द कंजम्पशन ऑफ फिश एंड चिप्स डिक्लाइंड। कंजम्पशन ऑफ फिश एंड चिप्स डिक्लाइंड, ये एक अभी जो मैंने आप लोग को जनरल ट्रेंड दे दिया ना वहां पे, तो ये डिक्रीजिंग, वो डिक्रीजिंग ट्रेंड था। वाइल, अब यहां पे देखिए कामा, फिर हमने यहां पे कनेक्टर यूज किया, कंजंक्शन यूज किया वाइल। तो अब दो कंजंक्शन का इस्तेमाल यहां पे कर सकते हैं, या तो आप लोग करें वाइल का, और या आप लोग यहां पे कर सकते हैं वेयर एज, वेयर एज। तो इन दोनों के बगैर नहीं, और वाइल का जो ये कामा है ये वाइल से पहले आएगा, क्लियर। सो इसके बाद नहीं, यहां पे नहीं लगाना, डू नॉट एड कामा यहां पे नहीं लगाना, ये गलत है। और फिर ये दूसरा देखिए, पिज्जा एंड हैमबर्गर सा अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी। तो अब मुझे ये बताइए, ये दिस इज माय ओवरव्यू पैराग्राफ। इसमें मैंने क्या कहा कि एक कैटेगरी जो है वो डिक्रीज हुआ है, और दो कैटेगरी जो है वो इंक्रीज हुए। हैव आई मेंशन नंबर्स के कितना इंक्रीज हुआ है? हैव आई No, मेंशन द sir. डेट? नो। दिस इज व्हाट वी कॉल ओवरव्यू पैराग्राफ। Sir, जी, excuse me, Sir. sir. यस प्लीज। Sir, इसमें वो significantly increase और gradually increase वो नहीं वो mention लिख करना है सकते जिस हैं, तरह लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं। कि पिज्जा rapidly increase हुआ और hamburger gradually नहीं 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 नहीं, वो तो जनरली हम ले रहे हैं ना। तो हम्म अब अलग 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 नहीं लिख सकते, बस दो अलग है, दोनों बस इंक्रीजिंग है, बस वो ये कह रहे कि ये इंक्रीज हुआ है बस। ये अलग अलग नहीं ओके। लिख सकते, बस एक ही जुमला है आपका, ठीक है। और सर ये और सर ओवरव्यू प्रेजेंट प्रेजेंट में लिखेंगे ओवरव्यू। एक मिनट, जी जी भाई आप बताइए पहले। सर ओवरव्यू प्रेजेंट में लिखेंगे ना, प्रेजेंट टेंस में, नहीं, प्रेजेंट में नहीं होगा, पास्ट में होगा वो। पास्ट में। पास्ट में लिखना पास्ट है। में ये तो मैंने इसीलिए यहाँ पे ये लिखा है कि इट इज क्लियर। मैंने क्लियर क्यों लिखा, इट इज क्लियर क्लियर, प्रेजेंट क्यों लगा हाँ। है, क्योंकि ये तो आपको अभी नजर आ रहा है ना। लेकिन बाकी तो सब कुछ मैंने पास्ट में लिखा है, ये भी पास्ट में, ये भी पास्ट में। अच्छा सर, जो हम अपनी तरफ से लिखेंगे वर्ड वो प्रेजेंट में लिखेंगे, नहीं नहीं, बाकी आप, चीजें ग्राफ के मुताबिक वो पास्ट मैडम में जी, लिखेंगे। आपने इंट्रोडक्शन प्रेजेंट में क्यों लिख रही हो? प्रेजेंट में इसलिए लिख रहे हो कि आपको अभी भी नजर आ रहा है ये ग्राफ, और कल भी नजर आएगा वो। हम्म 10 साल पहले भी यही हम्म ग्राफ था, आज भी वही ग्राफ नजर आ रहा है, 20 साल बाद भी आएगा नजर। तो आपको तो अभी नजर आ रहा है हम्म ना, हम्म। अभी नजर आ रहा है। तो एक चीज अभी अगर आपको नजर आ रहा है तो पास में हुआ, तो पास में है, लेकिन नजर तो अभी आ रहा है। तो प्रेजेंट, इंट्रोडक्शन प्रेजेंट में होगा, हाँ ठीक है ना। आप लिखेंगे शोज, तो ये जी ग्राफ तो अभी शो कर रहा है, तो इसीलिए ये ग्राफ जो है अभी जी क्लियर सर। है ग्राफ से। लेकिन बाकी तो ये काम तो अभी नहीं हुए, हम्म ये तो पास्ट में हुए थे। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू यूज देम इन पास्ट, नॉट इन प्रेजेंट, बट द फर्स्ट वन, क्योंकि अभी आपको क्लियर नजर आ रहा है कि भाई इसमें ये हुआ है।
सर इसमें इस तरह डेट्स भी आते हैं, मतलब 2005 टू 2025, नहीं तो लिखना, फिर नहीं लिखना, डेट नहीं लिखना, ओवरव्यू में डेट नहीं लिखते। नहीं, नहीं, ओवरव्यू में ये सब नहीं लिखना। प्रेजेंट हाँ और पास्ट की बात कर रहा हूँ सर। आपने जी जी, बताया वो था ना तो कि वहां इस पे नजर आता है ना आप लोग को ऑलरेडी, मतलब क्लियर होता है कि ग्राफ से कि कौन सा कल हमने पढ़ा था ना टाइमलाइन। हम्म तो उसमें वहां आपने पे बताया था ईयर्स को हम वो वैल्यूज देखेंगे, उसके मुताबिक करेंगे। मतलब मैं इसलिए कह रहा था कि अगर 2025 2026 की बात हो रही है तो फिर प्रेजेंट में लिखेंगे। नहीं, फिर भी पास में लिखेंगे। फ्रॉम 2025 टू 2026 एक साल गुजर गया। वो पास्ट में लिखना है भाई, वो बात की बात है भाई। आप अब यहाँ पे जी। देखिए, ये क्वेश्चंस आप लोग अपने आप से पूछे, व्हाट इज द जनरल ट्रेंड? इंक्रीजिंग है कि जनरल ट्रेंड का मतलब है कि ओवरऑल, एक एक को आप ना ले, चार कैटेगरीज है तो चार में कितने अप जा रहे हो कितने डाउन जा रहे हैं, बस ये ओवरऑल है, ये जनरल ट्रेंड है। ठीक है, हाईएस्ट कौन सा है, लोवेस्ट कौन सा है, बस। आर देयर एनी स्ट्राइकिंग, इसकी भी जरूरत नहीं है, क्लियर। सो यू कैन जस्ट ओनली गो फॉर 2 3 थिंग्स जो मैंने अभी शो कर दिया आपको। सिंपल लिखा करे, क्लियर लिखा करे। अब यहां पे देखे, मैंने लिखा था कि ओवरव्यू पैराग्राफ लिखने के लिए आप लोगों को किस चीज की जरूरत होगी? लिंकिंग वर्ड। हाउ टू राइट द ओवरव्यू पैराग्राफ? सो वी मे टेक सम ऑफ द, नंबर वन, आइडेंटिफाई द विजुअल टाइप, वो तो आप लोग को पता है ऑलरेडी कि क्या है। देन आस्क दीज क्वेश्चंस फ्रॉम योर सेल्फ, इसी की बुनियाद पे आप लिख सकते हैं। फिर सेलेक्ट द मोस्ट नोटिसेबल ट्रेंड्स, मोस्ट नोटिसेबल, हर एक को नहीं कि मतलब अप जा रहे हैं डाउन जा रहे हैं, मैंने कहा पिक 2 और 3 प्रॉम्प्ट्स मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स, ज्यादा नहीं। यूज इन ओवर व्यू लिंकिंग फ्रेज, और लिंकिंग फ्रेज क्या है, ओवरऑल। एंड देन कंबाइन, क्लियर, राइट 1 to 2 sentences, यू कैन कंबाइन देम, क्लियर। लेकिन आपने क्या, लीव द स्पेसिफिक परसेंटेजेस, डेट्स एंड अमाउंट्स फॉर द बॉडी पैराग्राफ, वो चीजें हमने बाद में लिखने होता है। अब आप आ जाइए, लेट मी शो यू प्रैक्टिकल एग्जांपल, देन यू विल अंडरस्टैंड अ बिट बेटर। Sir, जी जी। the yesterday formulas which we have studied about it, they're not using here in वी in वो तो overview. हम मैम यहाँ पे अभी इस्तेमाल करने वाले, लेकिन सिर्फ उसमें वैल्यू और डेट हमने नहीं इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। Oh, अब okay, देखिए, मैं वही फार्मूलेज यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है। okay. सपोज मेरे पास अब यहाँ पे अगर आप देखें, सो आई हैव गॉट 3 कैटेगरीज, इनमें से दो क्या हो रहा है, दो ऊपर इंक्रीजिंग ट्रेंड है, एक डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले मैंने किस चीज से स्टार्ट लेना है, ओवर ऑल। इट कैन बी क्लियरली सीन दैट, लिख दिया मैंने ये अल्फाज, ये तो एक्स्ट्रा अल्फाज है, बस अपने अपने पास रखते हैं। बाकी पूरे का पूरा मैंने किस चीज में लिखना है, पास्ट में। अब हमने ये करना है कि इसमें मतलब हमारे पास कंजम्पशन है, किस चीज का कंजम्पशन है। अगर मैं व्हाट स्ट्रक्चर इस्तेमाल करूं, व्हाट व्हाट स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकता हूं ना, तो इसमें यस। Yeah. पहला वाला कैटेगरी कौन सा है, सपोज मैं फिश एंड चिप्स का लिख सकता हूं, द दैट द कंजम्पशन ऑफ फिश एंड चिप्स, कंजम्पशन ऑफ फिश एंड चिप्स, ये वर्ड हुआ कि नहीं मेरे पास, यस सर। वर्ड Yes. स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद आप देखिए, डिक्लाइन हुए कि इंक्रीज हुए कि डिक्रीज, हाउ लिखेंगे ना हम यहाँ डिक्रीज पे। हुआ है। तो हाउ, यस। तो अगर हाउ मैंने डिक्रीज। लिखना है तो डिक्रीज लिखूंगा, लिखूंगा ना, जी सर। डिक्रीज्ड, क्योंकि मेरे वर्ब लिखना है। और कैसे डिक्रीज्ड हुआ है, तो मतलब ये मैं लिख सकता हूँ कि मतलब डिक्रीज हुआ है, ठीक है, स्टेडिली, Really. स्टेडिली डिक्रीज्ड हुआ है ओवर, क्लियर, थ्रू थ्रू आउट द पीरियड। और अगर यहां पे नहीं लिखना, आखिर में भी लिख सकता हूँ स्टेडिली। अब यहां पे मैंने क्या लिखना है, कामा, एक का किस्सा मैंने तमाम। अब यहां पे मैं या वाइल लिख सकता हूं, अगर वाइल नहीं लिखना चाहते तो क्या लिखे, वेयर एज। वेयर Whereas. एज के बाद ये पहले काम आएगा, बाद में नहीं। अब यहां पे क्या है, वाइल। फिर अब यहां पे मैं जो ये स्ट्रक्चर, पहला वाला स्ट्रक्चर मैंने कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया, What? व्हाट। व्हाट, ठीक है। लेकिन यहां पे तो मुझे वैल्यू और टाइम ऐड करने की जरूरत नहीं है ना। यस सर। Yeah. तब इनकी जब जरूरत ही नहीं है तो मतलब मैंने वो नहीं लगाना। अब मैं लिखना हूं, अब मैं जो दोबारा ये दूसरा स्ट्रक्चर लिखूंगा तो मैंने क्या करना है, आई हैव टू चेंज, आई हैव टू चेंज, क्लियर, द स्ट्रक्चर। आई कैन से देयर, What? देयर वाज, तो मैंने कौन सा वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया,
देयर वाज है There ना, was. तो अब देयर वाज अ सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है कि नहीं? Yes. अब हाउ Uh, मेरे पास एडजेक्टिव प्लस क्या आएगा? एडजेक्टिव Noun. प्लस Trend. नाउन। Noun. सो मैंने Now. कहा वेयर इज देयर वाज अ सिग्निफिकेंट, अब इसमें इंक्रीज आया ना, तो मैं लिख सकता हूं ना Yes, sir. राइस। Mm, अब राइस का nice. हमारे पास राइस के लिए नाउन फॉर्म तो नहीं है, तो राइस बेस फॉर्म हमने लिख दिया और इट गिव्स यू व्हाट, द इंक्रीजिंग ट्रेंड। देयर वाज अ सिग्निफिकेंट राइस, तो किस चीज में मतलब आया है, ठीक है, राइज इन व्हाट। अब व्हाट मैंने लिखना है इसके बाद ना, क्योंकि मैंने वैल्यूज तो वैसे भी नहीं Yes, लिखना। sir. एंड द utilization utilization of what, pizza The hamburger. and ham Hamburger. burgers। अब क्योंकि मैंने ऊपर ऑलरेडी मतलब वहां पे लिख दिया था कंजम्पशन, तो मैंने यूटिलाइजेशन लिख दिया। अब मैं क्या लिखता हूं, अब इसके बाद मैं क्या लिखना चाहता हूं, मैं लिखना चाहता हूं कि ओवर थ्रू, THROUGH, थ्रू आउट द पीरियड। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे मैंने टाइम का तो मेंशन किया, लेकिन मैंने किसी खास टाइम का तो नहीं किया, जनरल मैंने लिख दिया ना। हेलो, ये मैंने जनरल लिख दिया थ्रू आउट द पीरियड। अब मतलब जनरल लिख दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नाउ दिस इज कॉल्ड व्हाट, वी कॉल इट इन ओवरव्यू क्लियर, लेकिन इसमें जनरल ट्रेंड आएगा। वी डू नॉट राइट लाइक फ्रॉम 1975 टू 2000, वो फिर स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक टाइम यहां पे आपने मेंशन नहीं करना। अब ये दिस इज Yes. व्हाट आई कॉल नाउ ओवरव्यू पैराग्राफ, ये मेरा क्या है, ओवरव्यू पैराग्राफ है। अब ओवरव्यू पैराग्राफ में मैंने क्या किया, तो मैंने ओवरऑल से स्टार्ट लिया एंड देन आई टॉक्ड अबाउट जनरल ट्रेंड, अबाउट द इंक्रीजिंग वन एंड द डिक्रीजिंग वन, राइट। और उसके बाद मैंने क्या किया इसके साथ, कि ना तो मैंने इसमें डेट मेंशन किया हुआ है और ना मैंने यहां पे कोई नंबर मेंशन किया है। आप समझ रहे? Yes, sir. So Yes, this sir. is called Yes. like the second paragraph, you can quite easily write it down। अच्छा अब देखिए, We need to practice now. yeah, wait, yes, wait for a while, then I will give you practice। अब इन सब के अगर आप देख ले, यहाँ पे ये लाइन ग्राफ है ना, तो हमने लिख दिया ओवरऑल, it can be clearly seen that the percentage of elderly people increased in all three nations। मतलब हमारे पास 3 नेशंस के कैटेगरीज है, तो हर एक में क्या हुआ है, सारी मतलब इंक्रीजिंग है, इसमें ऑपोजिट नहीं है। तो लेकिन हमने क्या किया, विद जापान एक्सपीरियंस द मोस्ट ड्रामेटिक राइज, लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका मतलब ज्यादा इंक्रीज हुआ है, जापान का। हर एक में अगर आप देखें, इसमें कोई नंबर हम नहीं मेंशन करते, ठीक है, वी नेवर मेंशन एनी ऑफ द नंबर्स। तो ये मेरे पास है इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में हम 5 पॉइंट्स मेंशन कर देते, ठीक है। Okay, you was already prompt is provided to you and you are just going to paraphrase that। The line graph हुआ, compares verb हुआ, फिर ये what है, am I right? And then we have USA, Canada and Mexico, they are where, ये where हुआ। और then this is the last part, that's when। 5 points, ये point number 1, point number 2 and then point number 3, 4 and 5, ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हमने पढ़ा कि ओवरव्यू, अब इसका ओवरव्यू पैराग्राफ देखिए, ओवरऑल से स्टार्ट लिया, इट इज क्लियर दैट इंटरनेट यूजेज एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन ऑल 3 नेशंस। अब यहां पे देखिए कौन सा वो इसमें कौन सा वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है मैम, हमने जब 3 स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े थे, तो कौन सा स्ट्रक्चर है ये? This is special verb. स्पेशल वर्ब, एक्सेलेंट, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस इस्तेमाल करे, उसके बाद हमने एडजेक्टिव प्लस नाउन इस्तेमाल कर दिया। Furthermore, the USA consistently had the highest percentage of users, while Mexico का क्या है, saw। अब saw दोबारा है तो स्पेशल वर्ब है। Yeah. अच्छा, अब common mistakes students make in overview paragraph। What are those mistakes? Number 1, including specific numbers and percentages। मतलब वो लिखते हैं ओवरऑल इंटरनेट यूजेज इन द यूएसए रोज टू दिस, स्पेसिफिक नंबर या परसेंटेज है ना, हमने ये नहीं लिखना, ठीक है। हम लिख सकते हैं ओवरऑल इंटरनेट यूजेज इन द यूएसए saw significant rise over the period। Then copying the prompt
Clear. Copying prompt word for word. Overall, the graph below shows the percentage. ये तो नहीं लिख सकते हमने वहां पे, ये तो कोई इंट्रोडक्शन तो नहीं है, ठीक है? So we don't copy them. और फिर राइटिंग पर्सनल ओपिनियन और कंक्लूजन हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, गलत है। हम नहीं लिख सकते ओवरऑल आई थिंक इंटरनेट सा ग्रू, ये चीज़ें नहीं करना, ठीक है? रीजन इसमें ये नहीं होते। हमने सिंपल लिखना है ओवरऑल द प्रोपोर्शन ऑफ इंटरनेट यूजर्स इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, बस। ट्राइंग टू इंक्लूड टू मेनी डिटेल्स, इसमें टू मेनी डिटेल्स हमने नहीं डालने। जैसे ओवरऑल द यूएसए वाज द हाईएस्ट, देन कनाडा, देन मैक्सिको वाज द लोवेस्ट, एंड दिस, नो नीड ऑफ दिस थिंग्स, ओके? आपने सिर्फ हाईएस्ट और लोवेस्ट का फिर करना है, बस। द यूएसए मेंटेन द हाईएस्ट यूजेज व्हाइल मैक्सिको एक्सपीरियंस द फास्टेस्ट ग्रोथ, बस खत्म। देन नंबर 5, नॉट यूजिंग अ साइन पोस्ट फ्रेज। तो साइन पोस्ट फ्रेज हमारे पास क्या है, यहां से हमें पता चलता है कि ओके somebody has written the overview, combining the intro, no, the intro and overview properly. So the graph shows internet users and the USA is the highest. No, separate them clearly. Paragraph 1 introduction, paragraph 2 about overview, दोनों को इकट्ठे ना लिखा करें। Is this clear? Yes, Okay. sir. This is the checklist. आप देखिए पहले वाला पैराग्राफ नंबर 1 is my overview in a separate paragraph. अगर मैंने क्या सेपरेट पैराग्राफ लिखना है हमने ना? Did I start clear with a Yes, sir. clear linking word? अगर ओवरऑल से मैंने शुरू किया कि नहीं? Did I write one or two complete sentences? Did I identify the gender trend, increasing and decreasing? And did I mention the highest and lowest category if there are? And are there absolute zero numbers or percentages? ये अगर आपने नहीं लिखना है। And are there absolute zero dates? Dates भी नहीं लिखना। And did I avoid giving my personal opinion? Personal opinion नहीं। If there are two charts, did I summarize both of them? या फिर जब हम मल्टीपल चार्ट्स पढ़ेंगे वहां पे मैं क्लियर कर दूंगा। अब इस चीज की अब आपको जरूरत नहीं है right now. And did I check my grammar and spelling? That's the last one. ठीक है जी। अब देखिए मैंने आप लोग को प्रैक्टिस के लिए ग्राफ देना है, एंड देन वी विल टेक एन एग्जांपल फॉर दैट। अच्छा, दिस इज व्हाट वी हैव अ ग्राफ एग्जैक्टली लाइक द सेम वे। अब इसी पे आप लोगों ने क्या लिखना है? यू आर सपोज टू राइट इन ओवरव्यू फॉर दिस। शुरू करें, शाबाश। यू हैव 5 मिनट्स टाइम टू राइट द ओवरव्यू, एंड मुझे यहाँ पे आप लोगों ने चैट बॉक्स में शेयर करने, चैट बॉक्स में मुझे शेयर कर दे आप। I'm waiting for there and then I will check it out. Okay, I received your overview, Adnan. Overall, it can be seen that the household recycling rate in France are नहीं, ठीक है, because it's in the past. और मैंने ये नहीं लिखा था कि ASMR नहीं लिखना, ठीक है? How if we write down about house, so never use ASMR. So you can say in France simply decrease steadily, while in Germany, uh, while in the UK, with the UK you need to write the UK and then you need to
keep UK capital, U and K both capital, okay, not small letters. Household recycling rate significantly. Okay, अब यहाँ पे significantly rose, not rise, because adverb है तो adverb needs what? A verb. Rose, Yes. second form you need to use. Rest, it's okay. बाकी ये ठीक है. इसमें अब दोबारा चेंजेस खुद करें और ये चेंज करें अदनान मेरे साथ दोबारा. Overall, it can be clearly seen the graph and the graph that the regional household recycling rates are rapidly. Okay, ये in the past है. शवाल again you have written are. और जरूरत नहीं है आर तो मैंने कहा ही नहीं है सेम एग्जैक्टली यू डिड द मिस्टेक रिसाइकलिंग रेट रैपिडली इंक्रीज्ड बस और इंक्रीज रैपिडली इन द यूके फॉलोइंग जर्मनी ओके बस सिंपल लेके इन द यूके एंड जर्मनी फॉलोइंग की जरूरत नहीं है वेयर एज अब वेयर एज में ये स्पेस नहीं होना चाहिए इट्स वन सिंगल स्पेलिंग वेयर एज फ्रांस ग्रेजुअली डिक्लाइंड अब डिक्लाइन नहीं डिक्लाइंड होगा पास्ट में डिक्लाइंड थ्रू आउट द पीरियड इसमें दोबारा चेंजेस करे और मुझे भेज दे शाबाश Sharia is clearly mentioned that okay it is clearly mentioned क्योंकि ये पैसिव है तो पैसिव में इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है ठीक है तो मेंशन नहीं होता सीन लेकर करे इट कैन बी क्लियरली सीन डोंट राइट मेंशन थर्ड that the regional house recycling rates okay ratio in England नहीं यूनाइटेड किंगडम लिख दिया करे ठीक है in United Kingdom decreased throughout the year whereas France and Germany increased over the period. अब आपने यहाँ पे ऑलरेडी थ्रू आउट द पीरियड लिख दिया ना अब ये ईयर नहीं है थ्रू आउट द ईयर तो नहीं है ना थ्रू आउट द पीरियड है लेकिन एक के साथ आपने इस्तेमाल करना है ठीक है आइदर विद द फर्स्ट सेंटेंस और द सेकंड सेंटेंस क्योंकि आपने तो ओवरऑल दोनों का सेम टू सेम लिखना है तो एक के साथ लिखे और ईयर ना लिखे ओवर द पीरियड लिखते बस क्योंकि ये एक साल के लिए तो नहीं है थ्रू आउट द ईयर्स लिख सकते हैं ईयर्स मतलब लिख एक सकते हो यस दैट्स फाइन लेकिन थ्रू आउट द पीरियड लिखते हैं हम ठीक है पीरियड लिखते हैं ईयर्स के लिए हम पीरियड लिखते हैं ओके सर एजल तो ओवरऑल सर ये इसमें एक जी करना है सॉरी एक बार मेंशन करेंगे ना डिक्रीज वेयर एज यस फ्रांस एंड एक का मेंशन जर्मनी करे इंक्रीज जी जी बिल्कुल दोनों का नहीं एक का मेंशन करे ओवरऑल रिसाइकलिंग रेट्स रोज इन द यूके एंड जर्मनी फ्रॉम अच्छा भाई एजल एजल आपने फ्रॉम क्यों लिख दिया मैंने नहीं कहा कि टाइम को आप लोगों ने नहीं मेंशन करना ओवरव्यू में और फिर आपने क्या किया बट का मैंने कब कहा है बट फेल इन फ्रांस ये अपने तरफ से क्यों लिख रही हो आपने कैसे लिखना है जर्मनी वाइल और या वेयर इज बट की जगह क्या लिखना है वाइल और या वेयर इज नॉट बट क्लियर फिल इन द फ्रांस तो क्या फिल हुआ आप ये लिखे कि दो जुमले में आपने सिर्फ लिखना है आपको ये दोबारा लिखे ऊपर और ये स्टूडेंट्स का थोड़ा रीड कर ले और ये दोबारा लिखे इसमें मिस्टेक्स है हबीबा दैट्स ओवरऑल इट इज क्लियर दैट द हाउस रिसाइकलिंग रेट ऑफ फ्रांस declined very good whereas the UK showed a significant कहाँ चला एक मिनट okay it showed a significant increase that's good increase तो शो किया very good लेकिन इसमें आखिर में लेके over the period भी लिख दिया बाकी हबीबा आपके बिल्कुल परफेक्ट है कोई मिस्टेक नहीं है इसमें एक्सक्यूज मी सर जी सर ये जो आप अभी कह रहे थे ना कि दोनों में एक दफा मेंशन किया लेकिन अभी आप जो ये मैम का चेक कर रहे थे तो इसमें आपने दोनों का कहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और थ्रू आउट द ईयर नहीं लिखे उसने दोनों एक भी नहीं लिखे दोनों उसने मरतबा हबीबा का एक भी मेंशन नहीं है तो उसे मैंने कहा कि लिख दो एक एक मरतबा लिखेंगे ना सर एक मर्तबा लिखी इसने तो एक मर्तबा भी नहीं लिखे यस सर ओके मुजम्मिल आपने लिखा है कि द रेट्स तो पहले सबसे पहले तो द भाई मेरे भाई द अच्छा अब मुजम्मिल द تقبل زانا زانا ولي ليك يرى ده تقبل مرزي سخونش ليك لك انا قربان تا ما سوي الاول ولي سوي لك اوفرال وليك رايت داون اوفرال then كاما the نور ولا agreed on the other hand porque tata chavel on the other hand have I said that no I said write down where is or while ये इसमें काफी ज्यादा मिस्टेक्स है या बाकियों के रीड करें तो आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा सितारा overall it can be clearly seen that the household recycling rates of France declined steadily while very good you grew very good सिर्फ इसमें आप ओवर द पीरियड लिख सकते हैं बाकी आपका सितारा बिल्कुल परफेक्ट है अतः ओवरऑल रिसाइकलिंग रेट रोज इन द यूके एंड थ्रू आउट द पीरियड ठीक है रोज हुआ है लेकिन कैसे रोज हुआ वो भी मेंशन क्या करो अतः वेयर एज अब वेयर एज का है भाई इसमें तो नहीं है विथ अच्छा वेयर एज का स्पेलिंग आपने गलत किया है
वेयर इज फ्रांस एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे देखे कि भाई फ्रांस और जर्मनी एक्सपीरियंस नहीं करता, उसमें जो काम है वो रिसाइकलिंग रेट एक्सपीरियंस हो रहा है बाय द एंड ऑफ द पीरियड यूके। अच्छा ये यहाँ पे देखे भाई, ये आपने काफी ज्यादा बड़ा चढ़ा के पेश किया हुआ है, आता है ये थोड़ा चेंज कर दो, दोबारा लिखो। Overall household recycling rates increased significantly in both UK and Germany over the period. Very good, Sean. In contrast, ठीक है, इन कंट्रास्ट की जगह आप कोशिश करें सना कि यहाँ पे वेयर एज या वाइल लिख दिया करें और कामा इस्तेमाल करें, फुल स्टॉप नहीं। द रेट्स इन द फ्रांस डिक्लाइन। आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मेंशन की है सना, इतनी चीज़ें ना मेंशन किया करो, ये थोड़ा बस सिंपल लिख दिया करो जो मैंने बच्चों को पढ़ाया भी। इट इज क्लियर दैट हाउस होल्ड अनफाल, इट इज क्लियर दैट हाउस होल्ड रिसाइकलिंग रेट्स इन द यूके, कितने बार मैं कहूँ कि यूके के साथ द लगाया करे। इन जर्मनी हैज इंक्रीज, किसने कहा है इंक्रीज, बस इंक्रीज, हैज किसने कहा है, मैंने तो हैज नहीं कहा आपको, मैंने लिखा था इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। और आप यहाँ पे कामा लगा दे, कामा यहाँ पे देखिए वियरेज में और कामा में बिल्कुल स्पेस नहीं है। ऑफ आवर रिसाइकलिंग हैज ये क्यों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्यों लिख रही है, सिंपल पास्ट टेंस में लेकर करे मैम, कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं। अनफाल ये दोबारा लिखे। सही है सर। मामूर ओवरऑल, ओ जो है मैम मामूर आपका ओ स्मॉल है, क्यू स्मॉल लिख दिया, कैपिटल क्यों नहीं लिखे क्योंकि जुमला कैपिटल से। इट इज एविडेंट that household recycling rates increased in both the UK and Germany, whereas France experienced overall decline despite the slight। ठीक है आपका बाकी ठीक है, सिर्फ ये ओ कैपिटल कर दे। Shawal, overall, it is clearly okay. It is clearly seen. ठीक है, it can be clearly seen लिख दिया करें in the graph की जरूरत नहीं है that regional household recycling rates rapidly increased in the UK and Germany whereas France gradually declined through। ठीक है आपका बाकी ठीक है। Sumaya, overall, it is clear that the household recycling rates of France decreased steadily। Very good, while there was a significant rise। Very good, आपने बिल्कुल सुमैया परफेक्ट लिखा है। Adnan, overall, it can be seen that clearly, it can be clearly seen that the household recycling rates in France are decreased। यार क्यों आर इजम आर लिख रहे हो, जस्ट आर इजम आर को गोली मारो, इजम आर कभी भी नहीं इस्तेमाल, आपने सिर्फ लिखना है फ्रांस डिक्रीज्ड स्टडीली, नो आर। while in the UK and Germany household recycling rates significantly rose। very good, बाकी ठीक है बिल्कुल ठीक है, सिर्फ आर नहीं, आर को हटाओ। समीर, ओवरऑल ओ कैपिटल लिखना है भाई, और आपने स्पेस बिल्कुल भी नहीं दिया है, कामा के बाद स्पेस होना चाहिए। इट इज क्लियरली सीन, इट इज क्लियर दैट द रीजनल हाउस होल्ड रिसाइकलिंग रेट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इन द यूके, यूके के पीछे द लगाओ। एंड इन जर्मनी while decrease in France throughout the period। बाकी ठीक है, कुछ small mistakes है। Sajila, overall it can be clear, it can be clearly seen that the recycling rates of household in the France decrease steadily। ठीक है, while significant rise observed, okay, in the UK। ठीक है Sajila, ठीक है मुनीबा। Overall, it is clearly seen that the house recycling rates in the France decrease steadily। where is के बाद काम या स्पेस दिया करे भाई मुनीबा, आपने स्पेस देना है। जर्मनी एंड यूके शोर से बाकी जबरदस्त है। Seema, overall, it is seen that recycling rate increased significantly in the United Kingdom and Germany, whereas there was a steady। बिल्कुल परफेक्ट है सीमा। तैयबा, ओवरऑल के बाद कामा क्यों नहीं लगाया भाई, कामा लगाया करो तैयबा। इट कैन बी सीन दैट द हाउस होल्ड रिसाइकलिंग रेट्स ऑफ थ्री नेशंस फ्रांस डिक्रीज स्टेडीली। तो यहाँ पे स्टेडीली कामा लिख दिया, कामा के बाद स्पेस फिर नहीं है, whereas there was a significant rise in the, बाकी ठीक है throughout the period। कामा और फुल स्टॉप के साथ आपका बिल्कुल सही दुश्मनी है, चाहे कामा लगाती नहीं हो, स्पेसेस देती नहीं हो, सो मेक श्योर यू मेक इट क्लियर। Shai Yousafzai, overall it is clearly seen that the proportion of the recycling rate in the UK and the Germany has increased। क्यों लिख रहे हो भाई, it's in the past, present perfect क्यों लिख रहे हैं आप लोग, मैंने कब कहा है कि आप लोग present perfect इस्तेमाल करें। सिर्फ इंक्रीज स्टेडीली, जर्मनी इंक्रीज स्टेडीली। अब कामा देखे यार, अल्लाह का खौफ करे, यहाँ पे कामा लगा दे फिर स्पेस दिया आपने, कामा से पहले स्पेस दिए हुआ है, ये दोबारा ठीक करके दोबारा भेजो। शाबाश शाह यूसुफ जई। Liability, overall, it can be clearly seen that their rates of household recycling in the UK and Germany increased rapidly, while in the France, very good, ठीक ठाक है, बिल्कुल जबरदस्त है लाइबा। Abu Bakr, it is seen that the proportion of household recycling rate is 70 in the UK, Germany, where is the recycling for us decline। Very good, जबरदस्त अबू बकर।
Ayaz is clearly seen in the graph. Ayaz overall lecture ته لیکل دی there is no overall او VRS ته تو ګورو VRS کې د spelling د غلط لیکل دی زړګي VRS is clearly seen that the graph that the UK and Germany recycling rates increased whereas France facing decreased. مړه Ayaz له خیال وکړه سړیا شاته بره ولا لګریډ کده نور والا mistakes دې شته پکې. Savera, it is clearly seen that the UK experienced the highest house rise followed by Germany, whereas France a rapid decrease to TK. Amna, overall, it can be clearly seen that regional recycling rates decrease significantly in the UK and Germany by rapidly. Very good. Amna TK. Unfollow, it is seen that the recycling rate in the UK is significant. These, whereas the rates of Zabardast, abhi theek kar diya aapne. Sadio, it can be clearly seen that the rates of waste declined, studied in France, while there was a significant growth in the percentage of Zabardast likh diya, Zabardast Sadia, great. Shah ne theek kar diya, it can be clearly seen that the proportion of other races in the United Kingdom increased is significant, whereas Shah bia di ګوره کامه په سپیس دی ورکړی دی اول کامه واچو بیا سپیس ورکړه نور دی زبردست شو. اچھا جی مونږ به وکړو بالکل شوال مونږ به وکړو وځئ ورځئ نور به څه کوئ په ما باندې بس کار مو شو ښه. सो ओवरव्यू पैराग्राफ अब थोड़ा कोशिश करें कि इसके जितने भी ओवरव्यू पैराग्राफ्स है वो आप घर पर जाके ये रीड किया करें और ये अंडरस्टैंड करें उस पर लिखते जाए ठीक है. इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू फॉर 4 ग्राफ्स यू कैन राइट आपकी किताब में भी और आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मॉडल आंसर्स पड़े हुए. सो आई विल सी यू इंशाल्लाह टुमारो देन. سارو जी जी دا تاسو کوم بوک نه مونږ ټیچینګ کو یا ریډینګ کوی نه دا بوک په مونږ سره شیر نه کوي बुक تاسو شته کنه ऑफिस نه ऑर्डر کا ځان ته آنلاین او هغه ऑफिस په نمبر 1 میسج وکړه and they will deliver you okay. صحیح ده سر Yeah. Any other questions? जी जी सुमाइरा सवई ته Sir, the students practice. दोबारा وای سوای Sir, students come practice وکړي. او دا کوم پارت دی؟ پریکټس کوم ځای کې وکړي دا کوم پارت practice students. کم پریکټس باندې انټروډکشن او اوورویو د ټیبل لاین گراف بار چارت په دې باندې خالي صرف دا دوه پارټس وکړي انټروډکشن ان you may practice introduction and the second one what we call overview just practice two nothing more صرف introduction overview باندې practice وکړي. जी sir. Introduction overview वाला. Excuse me, sir. Yes please. Sir, if there is a graph in which there are 3 categories, so one is increasing, one is decreasing, and one is stable. So we have to write for 3 of them. That's in راځي. Okay, sir. یا به increasing یا به decreasing ٹھیک ده. Yes, sir. Thank stability you. په هغه increase کې دننه راځي بیا هغه به مین بودی پیراګراف کې مونږ لیکو هغه ضرورت نشته تا overview کې هغه ضرورت نه وي. Okay, sir. Thank you. Yeah, welcome. Any other questions, please? Sir, kindly previous lecture. Yeah, I'm gonna upload inshallah tonight. Let me find some time to upload them. Inshallah, I'm going to upload all the lectures. سر جی نه باندې نه پس لاګین شو کنه بس دی No, bas te kana mada sake. اوکې See you inshallah tomorrow, okay? See you, Allah Hafiz. ان شاء الله Allah Hafiz.